Now let us understand the development of national interest. आखिर नेशनल इंटरेस्ट का इर्तिका कैसे हुआ, कैसे इसकी ग्रोथ है. So about national interest, it has a recent growth. It is not very old term, rather it is in use a few centuries earlier. In the early Middle Ages, national interest started as the interest of church. क्या मतलब है इसका कि मिडल एजेस में ये जो 14th 15th सेंचुरी है उसमें नेशनल इंटरेस्ट का नाम जब यूज़ किया जाता सो इससे मुराद चर्च का इंटरेस्ट था. सो वट एवर वॉज द इंटरेस्ट ऑफ चर्च इट वॉज कॉल्ड एज नेशनल इंटरेस्ट. तो जो भी ममालिक थे वो जो भी काम करते हैं तो उनका मकसद ये होता कि किसी तरीके से चर्च का इसमें इंटरेस्ट शामिल हो या चर्च को की दिफा की जाए या चर्च को फ़ायदा हासिल हो. सो एट दैट टाइम वट एवर वॉज द इंटरेस्ट it was linked to the interest of church because the church was very dominant. ये हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि the church, especially the Roman church, was very powerful and it has a very dominant role in the early mid-centuries, and therefore then there was a 30-year wars that you already know, and then finally we have the peace of Westphalia. लेकिन उससे पहले the national interest was regarded as the interest of the church, and all the states were struggling to protect the church and its faith. तो वो चर्च के इंटरेस्ट कौन कौन से थे, वो ये थे कि पहले चर्च का दिफा किया जाए, to protect the institution of church and its faith. तो जो उसके अकायद हैं, जो उसके beliefs हैं, उनका दिफा किया जाए. So these were the interest of the church at that time. Similarly, all the laws shall be in conformity with the church teachings. तो उस वक्त जितने भी लॉस कोई गवर्नमेंट बनाती या कोई किंग बनाता तो वो इंश्योर करता कि कोई भी लॉ चर्च की टीचिंग्स के खिलाफ नहीं है, क्योंकि फिर चर्च उस लॉ को नहीं मानती और उसको कैंसिल कर दिया जाता. So because of this, no law or even scientific knowledge or inquiry was allowed by the church, because it was the interest of church to defend church. So the national interest began or started as the interest of the church. And what were the interest of church? That we already discussed, to protect church, its faith, its beliefs and its teachings. So these were some of the interest of the church that started in the early Middle Ages. After Peace of Westphalia, when was Peace of Westphalia signed? It was signed in 1648. And you know what was the reason? Because there was a struggle between Protestants and the Catholics. And the Protestants were struggling hard to reform church and to decrease the power of church, which finally were successful, and as a result the power of church was weakened. तो अगर power of church कम हो गई है, उसकी power को ख़त्म कर दिया गया है, तो because of this the secular forces won, and as a result the king and the princes become independent. तो चर्च का खात्मा हुआ, चर्च की पावर का खात्मा हुआ, और इसके साथ जो फोर्सेस थी हैं, जो कि मोनार्चिकल फोर्सेस थी, जिसमें किंग इन्वॉल्व है, जिसमें प्रिंस इन्वॉल्व है, तो उनकी पावर्स अल्टीमेटली नुमाया हो गई, वो पावरफुल हो गए, क्योंकि आखिर में वहीं जीत गए. तो जब जीत गए इसका मतलब है कि अब जो भी इंटरेस्ट चर्च का होगा अब वो नहीं माना जाएगा, बल्कि अब चर्च का इंटरेस्ट तब्दील हो गया है in the interest of the king. So now the church has no role in the governmental affairs, because the Treaty of Westphalia has been signed, and now the national interest was not the interest of the church, rather it was now regarded as the interest of the ruling class, the interest of the prince, the interest of the king. So the interest changed from the interest of church to the interest of the king
और द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। मतलब ये है कि चर्च की पावर ख़त्म हो गई, उसका मफाद ख़त्म हुआ, तो अब चूंकि किंग वजूद में आ गया है या किंग की पावर ज़्यादा हो गई है, प्रिंस की पावर ज़्यादा हो गई है, तो अब जो उनका इंटरेस्ट है उसको नाम दिया जाने लगा एज नेशनल इंटरेस्ट। ये सिर्फ अवाम के लिए ये नाम यूज़ किए जा रहे हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट बेसिकली किसका इंटरेस्ट था? वो किंग का इंटरेस्ट था, वो प्रिंस का इंटरेस्ट था। एंड व्हाट वर दोस इंटरेस्ट? दोस इंटरेस्ट वर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस किंगडम फ्रॉम अदर क्लेमेंट्स, अपने तख्त व ताज की हिफाजत करना, अपने मुल्क की हिफाजत करना, और जो उसके बाकी दावेदार हैं उससे अपने स्टेट को बचाना, अपने तख्त को बचाना। दिस वॉज कॉल्ड द नेशनल इंटरेस्ट, although it was the king interest, but it was misnamed as national interest. For the people, this was used as a national interest. इसी के साथ the protection and expansion of territory of state. और कौन सा इंटरेस्ट हुआ कि अपनी सरहद की हिफाजत करना और उसी के साथ उसका फैलाव करना, अपने स्टेट को, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को मज़ीद बढ़ाना, उसको एक्सपेंड करना ताकि बाकी रियासतों को शामिल किया जाए। सो दिस वॉज आल्सो टर्म्ड एज वन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। आफ्टर दिस द प्रोटेक्शन एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूलिंग डायनेस्टी और रॉयल फैमिली, अपने ख़ानदान की, अपने शाही ख़ानदान की हिफाजत करना और उनके इंटरेस्ट का, उनके मफाद का ख्याल करना, दिस वॉज अगेन टर्म्ड एज नेशनल इंटरेस्ट। तो इस ज़माने में वट एवर वॉज द नेशनल इंटरेस्ट, तो वो मफाद सिर्फ और सिर्फ उस बादशाह की, उस शहजादे की जो अपने मफादात हैं, जो उसके शाही ख़ानदान के मफादात हैं, और अपने तख्त-ओ-ताज की हिफाजत करना है और अपनी सल्तनत का फैलाव करना है। सो दिस वर समथिंग कॉल्ड एज नेशनल इंटरेस्ट। आफ्टर दिस देयर केम अ स्ट्रगल बिटवीन मोनार्क एंड डेमोक्रेटिक फोर्सेस। अब चूंकि बादशाह भी, रूलिंग क्लास भी, जो प्रिंसेस है वो भी रूल कर रहे हैं, इसी के साथ साथ लोगों में भी शऊर हासिल हो रहा है, लोग भी एजुकेट हो रहे हैं, लोगों को भी अवेयरनेस आ रही है। सो नाउ देयर स्टार्टेड अ स्ट्रगल बिटवीन मोनार्क और द रूलिंग क्लास एंड द पीपल। सो वी हैव अ स्ट्रगल बिटवीन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एंड द मोनार्चिकल फोर्सेस। इनकी वजह से आखिर में, एज वी सी इन द हिस्ट्री, that the victory of the people was occurred and parliament was stronger over monarch. तो किंग की पावर कम हो गई, इसकी वजह से जो अवाम है उनकी ताकत बढ़ गई। अब किंग की पावर या तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है, उसकी जगह एक रिपब्लिक का वजूद में आ गया है जिसमें लोग अपने वोट के ज़रिए अपनी हुकूमत को मुंतखब कर रहे हैं। या जहाँ कहीं पे भी किंग या क्वीन का वजूद बाकी रह गया तो उनकी पावर्स को कम कर दिया गया और उनकी पावर्स को दे दिया गया टू द पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिक फोर्सेस वर स्ट्रॉन्गर एंड द मोनार्चिकल फोर्सेस वर वीक। सो आफ्टर दिस द नेशनल इंटरेस्ट बिकेम द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एज अ होल। क्योंकि अब एक क्लास नहीं है, अब चूंकि वो जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो लोगों की वजह से वजूद में आ रही है, लोग उसके लिए वोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो गई है। अब वो अवाम के हकूक़ के लिए और अवाम के मफाद के लिए काम कर रही है, अपनी नेशन के लिए काम कर रही है। तो अब सही मानों में नेशनल इंटरेस्ट का वजूद सामने आ गया। सो द नेशनल इंटरेस्ट नाउ शिफ्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ मोनार्क टू इंटरेस्ट of the people, also interest of the nation, which is actually called national interest. So this was a brief summary of the development of national interest. कि ये पहले शुरू हुआ चर्च से, पहले इसको चर्च का इंटरेस्ट कहा जाता, फिर उसके बाद it's this transfer to the interest of the monarch, the interest of the ruling class, and finally it shifted to the interest of the people or interest of the nation, which is now called national interest.
I hope you have understand the development of national